बोले हम भी देते जी भाई, हमें भी अफसर मिले, हमने भी 193 में नोटिस दिया हुआ है। क्यों बैठो? अध्यक्ष महोदय, हमने कार्यस्थल प्रस्ताव दिया। अध्यक्ष महोदय, आपने इनके पास सर, मैंने भी मुझे भी अफसर मिलना चाहिए। आपके पहले मुलायम सिंह जी खड़े हुए हैं, इसलिए मैंने उनको इजाजत दी। मैं उनको सुनना चाहता हूँ, क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज 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 मैं तो बैठा ही नहीं था, मुलायम सिंह जी आप महोदय, हम सहयोग कर रहे हैं ये शांत तरीके सदन चले, लेकिन ये सप्ताह 25 मीटिंग करके दिया है, सदन ना चले तो हम क्या करें? हम तो सहयोग कर रहे हैं पूरी तरह हमें भी कि सदन चले। सर, मैंने भी दिया है, मुझे भी अफसर मिलना चाहिए। प्लीज कृपया साउथ अफ्रीका देखिए, मुलायम सिंह जी जो विषय सामने रखना चाहते हैं वो मैं सुनना चाहता हूँ। मैंने इसीलिए उनको इजाज़त दी है। क्वेश्चन आवर के पहले भी यदि वो कुछ कहना चाहते हैं क्वेश्चन आवर के बारे में तो मैं सुनना चाहता हूँ, बाद में आप भी बोल सकते हैं, उसमें क्या। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमने कार्यस्थल प्रस्ताव दिया है और कार्यस्थल प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए आज की सारी कार्रवाई स्थगित करके अयोध्या विवाद को लेकर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आज देश के सामने बड़े गंभीर संकट है। एक तो आंतरिक अशांति और दूसरी तरफ सीमा पर भी हमारी सुरक्षा नहीं हो पा रही। हमारा दुश्मन आतंकवादियों का प्रयोग करके हमारी संसद पर हमला करता है, विधानसभा पर हमला करता है, अक्षरधाम मंदिर पर हमला करता है, लाल किला भी सुरक्षित है। जब देश के सामने एक तो ये खतरा, आर्थिक संकट है देश का, पूरे के पूरे देश का विकास रुका पड़ा है। आज किसान की पैदावार की लूट है, आज भुखमरी है, किसान के कगार पर आत्महत्या कर रहे हो और अन्न भरा पर, और ऐसे मौके पर एक जब असफल है सरकार, मैं यही बोल रहा हूँ, जब सरकार असफल है, बोलने तो दीजिए, मैं आ रहा हुआ होते ही तो मैं ये कहना चाहता हूँ। I have received 20 notices of adjournment motion regarding Ayodhya issue, which Mr. Mulayam Singh is trying to raise here from the following members: Shri Vikas Muktimwar, Shri J.M. Banatwaga, Shri Ajay Chakravarti, Shri Ramjigal Suman, Shri Lakshman Seth, Shri Kanwar Akhilesh Singh, Shri Tufani Saroj, Shri Mulayam Singh Yadav, Shri Ravi Prakash Verma, Shri Srimati Sushila Saroj, Shri Ramurti Singh Verma, Shri Dharamraj Singh Patel, Shri Rupchand Pal, Shri Somnath Chatterjee, Shri G.M. Banatwaga, Shri E. Ahmad, Shri Vasudev Acharya, Shri Bir Singh Mahato, Shri Ramdas Athoge, and Shri Sunil Khan. These are the notices which I have received on Ayodhya issue. I have also received 5 notices on drought situation in the country. They are from, वो मेरे लिए तो एवरी नोटिस इम्पॉर्टेंट है। श्री PR दास मुंशी, कर्नल सोनाराम चौधरी, श्री प्रकाश जायसवाल, श्री शंकर सिंह वाघेगा, and श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी. I have also, in addition to this, received a notice from Honorable Shri H.D. Devagowda. He has tabled an adjournment notice regarding plight of sugarcane growers, and Shri Ramjigal Suman has tabled a notice of adjournment motion regarding alleged misuse of quota. These are the various notices I have received, and since there are so many notices received, more number of notices are received from number of members, I have also a notice received on suspension of question hour, which has always a priority. This suspension of question hour notice is received from Sri Vasudev Acharya and Sri Rupchand Pal. I have to listen to both these members as to why they are asking for suspension of question hour, and before that,
since the issue of Ayodhya is an important, since the adjournment notices on Ayodhya have been issued by me and their number is very large, I have permitted to speak to Mr. Mulayam Singh. My only request would be that Mr. Mulayam Singh should speak for very few minutes, and I will also allow the ruling party members to speak on the issue. Let it be decided by the House itself whether they want to suspend the question hour and take up the issue. And therefore, first, Mr. Mulayam Singh will make observations for a few minutes. This is not a debate that we have started, Mulayam Singh ji. हमने चर्चा नहीं शुरू की है. हम तो केवल इस विषय में एडजर्नमेंट मोशन क्यों चाहिए और क्वेश्चन को क्यों सस्पेंड करना चाहिए, इसी विषय पर आप बोलिए. संक्षिप्त में बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मैं बहुत ही संक्षिप्त में बात करूँगा. अध्यक्ष जी, इस पर स्वाभाविक बहस की अनुमति हो गई आपकी चेयर को. मुझे आपने व्यवस्था दी, मुझे कुछ नहीं कहना. मुझे तो इतना कहना है कि जब राष्ट्रपति के अभिभाषण में अयोध्या इशू आया है और उस समय इस पर व्यापक चर्चा हो सकती है, और इसलिए अयोध्या के इशू पर उस समय अगर चर्चा हो तो ये ज़्यादा उचित होगा. बाकी के विषय में जो और विषय आए हैं उस पर हो, और वो भी क्वेश्चन आवर को स्थगित नहीं करना चाहिए. बहुत सारे लोग मेहनत करके देते हैं. और अगर आपसे हम अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे कि अगर क्वेश्चन आवर के बाद कोई समय आप तय कर दें, इस पर चर्चा हो सकती है और व्यापक हो, और हम इस पर और रात तक बैठे, कोई हमको आपत्ति नहीं. क्वेश्चन आवर को स्थगित करना ये उचित नहीं है. प्रश्न आपने उठाया है, मैं जवाब दूंगा. अध्यक्ष जी, इस पर सब प्रकार का फिर नोटिस लोग देंगे. हर बार क्वेश्चन स्थगित करने की प्रक्रिया के लिए लोग ये कहेंगे, फिर तो बार बार ये होगा. चूंकि एक परंपरा बन जाएगी कि हर बार क्वेश्चन स्थगित किया जाए. इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको बाद में ले लिया जाए, विषय लिया जाए, लेकिन बाद में ले लिया जाए. इससे हम कोई भागते नहीं. अयोध्या के इशू पर चर्चा हो, खूब हो, लेकिन प्रश्न ये प्रश्नकाल हो जाए. जो आप समय निश्चित कर देंगे तो अच्छा होगा, उस पर बहस हो. आपने जो पक्ष मेरे सामने रखा वो मैंने सुना है, और यदि सदन की सहमति हो तो इसके लिए मेरा कोई इतराज नहीं है. लेकिन बात ऐसी है कि मैंने उनको याद वो क्या कहना चाहते हैं वो तो मुझे सुनने दो. यस मिस्टर मुलायम सिंह जी. तो अध्यक्ष महोदय, हमने आपसे कहा हर एक को तो मैं इजाजत नहीं दे सकता. आपने स्वयं और माननीय सदस्य तरफ से स्वीकार का सवाल, इतनी गंभीर समस्याओं को लेकर अयोध्या का सवाल क्यों आया, ये आपसे कहना चाहूँ. इन सारे मोर्चों पर अस्पष्ट सरकार नाकामयाब रही. देश की सुरक्षा से लेकर आंतरिक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, पूरी की पूरी चौपट, तभी अयोध्या का सवाल आया. ये जब इस तरह की समस्या आती है, हल नहीं कर पाते अयोध्या के परिणाम क्या होंगे. जब एक हाई कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद में फैसला होने के लिए कार्रवाई हो रही है, और उसी वक्त इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला किया 1994 में. उन्होंने ये कहा कि इस विवादित भूमि पूरी है. और अध्यक्ष महोदय, ये गंभीर इसलिए है कि हम ज़्यादा नहीं, पूरा अखबार नहीं पढ़ेंगे, मामूली पढ़ेंगे. आपने जो हमें निर्देश दिया उसी के अनुसार मैं संक्षिप्त में बात करूँ. आप क्यों बोले भाई. पूर्व मुख्य न्यायाधीश जयंत वर्मा की अयोध्या के मुद्दे पर राय. मारा जा रहा है, अध्यक्ष महोदय, अपहरण होता है, फेक एनकाउंटर. मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, पूर्व मुख्य न्यायाधीश जयंत वर्मा की. आप क्यों मुलायम सिंह जी जल्दी खत्म कीजिए. हाँ, तो मैं अध्यक्ष महोदय, आज देखिए मैं समय कम ले रहा हूँ. मैं निर्देश का पालन कर रहा हूँ कि समय कम से कम ले रहा हूँ. तो अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था, पूर्व मुख्य न्यायाधीश जयंत वर्मा की अयोध्या मुद्दे पर राय. पूर्व न्यायाधीश ने कहा है, मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि वो इस मामले में 1994 में दिए गए अपने फैसले का स्पीकर दे रहे हैं, क्योंकि अक्सर इसकी गलत व्याख्या की जाती है और इसे तोड़ मरोड़ दिया जाता है. संवाद समिति वार्ता के अनुसार न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा, मैं जस्टिस वर्मा के संबंध में भी मुझे भी कुछ कहना, इस जजमेंट के संबंध में. देखिए, मुख्य न्यायाधीश की बात को कितना परेशानी इनको है.
व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा आप बोलना इसके बाद मुझे भी इस पर अगर- अनुमति, क्योंकि जस्टिस ए, वर्मा माननीय को विनय कोर्ट कर कर रहा रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ पर मुझे भी उसकी अनुमति दे अगर आप बोलेंगे तो हम बोलेंगे ना, आपको सुनेंगे। नहीं, आप बोले हम तो ये बंद कराइए। एक बार से पढ़ने दिया जाए। आप बंद करा। एक सप्ताह का समय चाहिए होगा मुझे सर। हाँ, तो बिना रोक टोक के सर। माननीय न्यायमूर्ति वर्मा ने अदबा गंभीरता से अब मैं भी सुनिए, पढ़ूंगा सर। ये तो बोलते ही रहेंगे। आपने मुझे कहा मौका देंगे आप। सिर्फ हेडिंग पढ़ूंगा, एक सप्ताह चाहिए मुझे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा, मैं राष्ट्र हित में अपनी चुप्पी तोड़ रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग फैसले कहीं के कहीं बातों की गलत व्याख्या कर रहे हैं। न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा कि सरकार अयोध्या में अधिग्रहित भूमि में से कोई हिस्सा किसी को नहीं दे सकती। अधिग्रहण संपूर्ण भूमि केंद्र सरकार के हाथ में है और संबंधित मुकदमा का फैसला होने तक किसी को नहीं सौंपी जा सकती। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार के नियंत्रण में जितनी भी जमीन है वो विवादित है। मुलायम सिंह जी, इस विषय पर तो जब चर्चा होगी, अरे मैंने छोड़ दिया बहुत है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मुख्य न्यायाधीश भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जे.एस. वर्मा का फैसला है और उन्होंने कहा कि देश हित में मैं अपनी जबान को खोल रहा हूँ। तो आज देश हित में खोला हुआ ये फैसला है और ये इसकी व्याख्या कर रहे हैं और इसका नतीजा क्या होने वाला है। नहीं तो देश को गलत संदेश आएगा। वो नहीं जाएगा। मैं आपके पार्टी के भी, ये देश को आपके पार्टी के माननीय सदस्यों को भी बोलने की इजाजत देने वाला हूँ। मुझे भी सुनने तो का सर ये बोलने नहीं देगा अध्यक्ष महोदय, तो क्या करें। बोलिए। और विनय कटार जी नहीं बोलने दे रहे, चढ़ते अब इन्हें तो अच्छा लग रहा है। तो अध्यक्ष महोदय, हम आपसे कहना चाहते हैं कि मुख्य न्यायाधीश की राय दे रहे हैं कि हमें देश के हित में अपनी जबान खोलना पड़ रहा है और ये पूरे देश का वातावरण खराब कर रहे हैं कि विवादित, उन्होंने कह दिया पूरी विवादित अविवादित कोई जमीन है और पूरी अधिग्रहण केंद्र सरकार के आगे। तो फिर हम पूछना चाहते हैं, सरकार ने उच्चतम न्यायालय में जाकर के फिर क्यों इस तरह का एक दावा पेश किया है कि अधिग्रहण जमीन को एक किसी संस्था को दे दिया जाए। जब पूरा का पूरा अखबार पढ़ेंगे तो साफ लिखा है, न तो किसी विश्व हिंदू परिषद का सवाल है न किसी तर्ज का सवाल है। ये केंद्र सरकार ने एक तरह कानून अधिग्रहण कर लिया है तो उसकी है जमीन। उसके बाद ये सहारा लेकर के एक विवाद खड़ा करना चाहते हैं। इसके पीछे पूरी राजनीति करेंगे, आपके विश्व हिंदू परिषद को संतुष्ट करेंगे। केवल संतुष्ट करने का एक तरीका है कि उच्चतम न्यायालय में हमें विश्वास है, उच्चतम न्यायालय में फैसला वही होगा जो हुआ 1994 में। फिर आप कहेंगे कि देखिए हमने तो उच्चतम न्यायालय में गए। तो एक अपनी सरकार को चलाने के लिए देश में गृह युद्ध छेड़ने की पूरी कोशिश हो रही है। हम इतना गंभीर मामला है और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि सरकार को तत्काल या तो इसको वापस ले और एक जो गंभीर समस्या देश की उसमें हमने हमेशा सहयोग किया है। पूरे विपक्ष ने जितना समर्थन सरकार को किया अध्यक्ष महोदय, आज तक इस इतिहास में कभी किसी सरकार को समर्थन नहीं मिला। उसके बाद इतनी नाकाम सरकार हो गई है। तो इसके लिए आप कभी भावनाओं को उभारेंगे और एक भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे और इस तरह के कानून ला करके इस तरह से पूरे देश में गृह युद्ध छेड़ने की पूरी साजिश है। कितना गंभीर खतरा है देश के सामने। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, कार्य स्तर पर मेरा स्वीकार कीजिए, सारी कार्रवाई रोक करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इतना देश हित में, राष्ट्र हित में जब बोल रहे हैं देश का मुख्य न्यायाधीश, तो हम चुप रहेंगे। जो हमारा ज़्यादा जिम्मेदारी है, हम जितने बैठे लोग उनकी सारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि कोई ये राजनीतिक सवाल हमने उठाया है, हमने देश हित में सवाल उठाया है और हम चाहते हैं कि पूरा सदन इसमें गंभीरता से विचार करे, देश की तमाम समस्या उसमें विचार करें। इसलिए हम चाहते हैं इसलिए सारी कार्रवाई रोक करके, आप समझ सकते हैं, सारी कार्रवाई रोक करके मैं सोमनाथ चटर्जी के बाद आपको बोलने को इजाजत दूंगा। सोमनाथ जी बोलिए। मिस्टर सोमनाथ चटर्जी, मुझे उसके संबंध मैं बात आखिर नहीं बोलना चाहता नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि नोटिस इनके है, इसलिए इनको पहले बोलिए सोमनाथ चटर्जी। जब अयोध्या का विषय आता तो अपने आप में नोटिस है अध्यक्ष जी। अयोध्या का जब मामला आएगा तो मैं अपने आप में नोटिस हूँ, क्योंकि मैं वहीं से छूट करके आता हूँ। और
Yes, please. इसे हमारा अधिकार है अध्यक्ष जी हमारे मुलायम लिए सिंह जी, आप क्षेत्र पूरा का मामला पूरी है। कार्रवाई को इसलिए ऐसे मुझे करके देखिए, मुझे तो हाउस- हमसे पूरा किया। मुझे तो हाउस कंडक्ट करना है, आप जरा कोऑपरेट करिए नहीं नहीं एक बात नहीं कहने दे रहे, एक कार्रवाई रोक करके पूरी चर्चा आज ही पूरे दिन करा दिया, शुरू करा दिया, ये हमारी प्रार्थना है। इनके पास जस्टिस वर्मा के संबंध में अब माननीय चटर्जी बहुत वरिष्ठ है, इसलिए मैं उनके बीच में बोलना नहीं चाहता हूं, प्लीज टोकना नहीं प्लीज चाहता हूं। बैठिए। आधा मिनट- इजाजत लीजिए, उनकी इजाजत लीजिए, हमारा क्या है? नहीं ये बड़ा गलत संदेश आ रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपको इजाजत देने को तैयार हूं, लेकिन आप जरा अभी बैठिए, सोमनाथ चटर्जी का नाम लें।